Dear students, now see the next example based on text file handling. This is the program to count alphabets, numbers, digits, spaces and special symbols. Okay, so I'm going to show you the text file, the previous one. This is our text file, and from which we have to count the number of alphabets, digits, special symbols and spaces. Okay, so in this program we have to read the file by character, because we have to check each character one by one whether this character belong to which category, whether it is a symbol, it's a digit, it's a space or any other. ठीक है, so we will ट्राई टू रीड दिस फाइल बाई कैरेक्टर. मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको सिखाया कि किसी भी फाइल को कैसे बाई कैरेक्टर रीड करते हैं. तो फाइल एक बार पहले ओपन करते हैं. फाइल एंड सिंटैक्स इज फाइल इक्वल टू ओपन and the file name is school.txt. so right here school.txt and in which mode? Read mode. So no need to write the R because that is the default mode. Okay, so file has opened. Now we have to read the file by character. So first transfer this file into a string. So we will take a string that is str equal to file dot read. We use read function to read the entire contents. Now to read by character we will use for ch, character for ch. In string we can use str function here. Okay, for ch in string. Now if we write here print ch, so that will print all the file character by character. But before printing the ch character, we have to check ch is a number, is a digit, is a space or any other symbol. So we need some counter. So we can initialize counters at the starting of the program before the loop. So counter to read the alphabet we will use ca. Then counter to read the number we will use cn. To count the digits we will use cd, and to count the space we will use cs, and to count the spacer symbols we use cm. ठीक है, so that is these variables we have used to count the different types of characters. So ca, cn, cd, cs, cm equal to 0. okay, because to start a counter we have to initialize all the variable with 0. तो हमने 0 से इसको इनिशियलाइज कर दिया. नाउ लूप चलाएंगे क्योंकि बिकॉज हमें एक एक कैरेक्टर रीड करना है, तो हम लूप चलाएंगे फॉर सी एच इन स्ट्रिंग. नाउ वी विल चेक सी एच, है ना. सो वी नीड इफ फर्स्ट वी हैव टू चेक द अल्फाबेट्स. सो वी कैन यूज इज अल्फा. इफ इज अल्फा क्या लिखेंगे? सी एच डॉट इज अल्फा, है ना. if ch dot is alpha. ओके, यदि ये अल्फ़ाबेट है देन यू हैव टू काउंट, है ना. यदि ये तो काउंट किसको इंक्रीज करेंगे? सी ए इक्वल टू सी ए प्लस 1. ओके, सो फर्स्ट चेक ओनली फॉर द alphabet. Now we will write after the loop is a message that is number of alphabets are ठीक है, और इसको हम प्रिंट करा देंगे कॉमा सी ए. सिर्फ ये चेक करने के लिए हम ये पेड़ एक बार रन करके देख रहे हैं कि कोई एरर तो नहीं है. ओके, यहाँ पर कोई एरर आ रही है, फाइल नॉट फाउंड, नो सच फाइल फाउंड. तो सबसे पहले हम इस प्रोग्राम को एक बार रन करके देख लेते हैं. ये हमने रन किया, सही चल रहा है. ये फाइल रीड क्यों नहीं कर रहा है? बिकॉज हमने इस प्रोग्राम को सेव नहीं किया. इसको हमने सेव कर देते हैं और इस प्रोग्राम को भी सेव कर लेते हैं और इस प्रोग्राम का नाम दे दें रीड
ओके, काउंट फाइल, इसका नाम क्या दे दिया, काउंट फाइल, बिकॉज सेव नहीं करेंगे तब तक वो फाइल को चेक नहीं कर पाएगा। अब हमने चेक किया तो नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स आर 39। ओके, इट्स ओके। तो क्या करना है आपको, फाइल को सेव जरूर करना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है जब भी आप Part-3 में यूज़ करेंगे। और नॉर्मल आप डेस्कटॉप पे वर्क करते हैं तो फाइल सबसे पहले सेव होती ही है, तो इसलिए इसमें भी तो हमने एक कोड लगाया अल्फ़ाबेट्स को काउंट करने के लिए। अब इसमें इफ़ एल एफ लगाते जाएंगे और हम नंबर ऑफ कंडीशंस लिखते जाएंगे। नाउ सेकेंड कंडीशन, सेकेंड थिंग वी हैव टू काउंट नंबर्स, है ना। तो एल एफ सी एच डॉट इच डिजिट, वी कैन यूज इच डिजिट. Each digit is used to count, check the whether the character is digit or not. So elif ch dot each digit, then count digit, है ना, count number is used to count the counter, है ना, then +1. Okay, so this is we will use for digit, है ना. Okay, now सभी को हम पहले काउंट कर लेंगे और सभी को सबसे बाद में प्रिंट कराएंगे लूप ख़त्म होने के बाद, बिकॉज जब तक पूरी फाइल रीड नहीं होगी तब तक हम उसको, सारे काउंटर जब तक चलेंगे नहीं तब तक हम उन काउंटर्स को प्रिंट नहीं कराएंगे। तो फाइनल वैल्यू प्रिंट कराने के लिए हमने लूप से बाहर डिजिट काउंट करने के बाद फिर हम स्पेस के लिए चेक करेंगे। तो स्पेस के लिए सीधे लगा सकते हैं CH इक्वल टू स्पेस, स्पेस को चेक करने के लिए सिंगल कोट्स स्पेस सिंगल कोट्स, है ना। तो यदि ये स्पेस है देन वी विल इंक्रीज काउंटर CS इक्वल टू CS +1, ठीक है। सो दिस इज द थर्ड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन इज अल्फाबेट, सेकेंड कंडीशन इज डिजिट, थर्ड कंडीशन इज स्पेस, है ना, एंड फोर्थ कंडीशन रिमेनिंग थिंग इज व्हाट, स्पेशल सिम्बॉल्स। सो एल्स स्पेशल सिम्बॉल्स के लिए हमने CM काउंटर लिया, तो CM इक्वल टू CM +1। ओके, नाउ वी हैव काउंटेड एवरीथिंग, नाउ प्रिंट 1 by 1। सो इसको हम एक कॉपी कर लेते हैं, इसको आप चाहे तो कॉपी कर सकते हैं और सबसे लास्ट में इसको पेस्ट कर दीजिए, पेस्ट 4 चीज़ें प्रिंट कराना है तो 4 बार इसको पेस्ट कर दीजिए, पेस्ट, एंड एक बार और प्रिंट कराते हैं एंड पेस्ट, ठीक है। ओके, नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स की जगह यहाँ पर क्या लिख दें, नंबर ऑफ नंबर्स, है ना, या डिजिट्स, और CA की जगह क्या लिख देंगे, CN, नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट हो गए। यहाँ पर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्पेसेस के लिए CS लिख देते हैं, स्पेसेस के लिए CS लिख दिया, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, CM, क्योंकि ये सिम्बॉल्स है, नंबर ऑफ सिम्बॉल्स, ठीक है। और ये सब सारी चीज़ें करने के बाद फाइल को क्या करें, क्लोज कर देते हैं, फाइल डॉट क्लोज। ये हमारी फाइल क्रिएट हो गई। तो फिर से देखें प्रोग्राम्स, हमने फाइल को ओपन किया, फाइल को ओपन करने के बाद फाइल को रीड किया एक स्ट्रिंग के अंदर, फिर हमने सभी काउंटर इनिशियलाइज किए, काउंटर इनिशियलाइज करने के बाद वी हैव अ लूप टू read a file by character, so we have applied a loop for CH in str, then we applied the first condition if CH dot is alpha, है ना, यदि अल्फ़ाबेट है तो then CA इक्वल टू CA +1, elif CH dot is digit, ओके, देन काउंटर CN इंक्रीज किया, देन स्पेस के लिए इंक्रीज किया, देन लास्ट में यदि इन तीनों की कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या मिलेगा, स्पेशल सिम्बॉल्स मिल गया। तो इन चारों को हमने लिखा, इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स 39 है, डिजिट्स 9 है, स्पेसेस 7 है और सिम्बॉल 6 है ना। तो ऐसे आप एक प्रोग्राम बना सकते हैं और आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। इस प्रोग्राम को हम सेव करते हैं, ओके, है ना। अब देखिए मैं आपको
एक और दूसरा प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ जिसमें कि हम वर्ड्स को वी विल ट्राई टू प्रिंट ईच वर्ड इन रिवर्स ऑर्डर, है ना। तो बाई वर्ड ईच वर्ड इन रिवर्स ऑर्डर करने के लिए अब मैं इस प्रोग्राम को रिमूव कर रहा हूँ और हम ईच वर्ड इन रिवर्स ऑर्डर प्रिंट करेंगे, है ना। तो इसी प्रोग्राम को मॉडिफाई कर रहा हूँ, आप इतना समझ गए होंगे। प्रोग्राम टू प्रिंट ईच वर्ड इन रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। अब फाइल अब रीड रिवर्स ऑर्डर में रीड करना है, तो अब हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, इन सब को हमने क्या किया, रिमूव कर दिया, ठीक है। रिमूव करने के बाद हमने सिर्फ फाइल को ओपन किया, ओके, फाइल ओपन हो गई। और फाइल ओपन होने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको फिर से फाइल को रीड करेंगे, ठीक है। तो रीड करने के लिए हमने एक स्ट्रिंग ली, स्ट्रिंग इक्वल टू फाइल डॉट रीड किया। अब आपको फाइल बाई कैरेक्टर नहीं करना है, अब आपको फाइल रीड कैसे करना है, बाई वर्ड करना है। तो मैंने आपको पहले सिखाया था कि फाइल को बाई वर्ड रीड करना हो तो हम उसे स्प्लिट कर लेते हैं, किसके अंदर, लिस्ट के अंदर। तो वी विल यूज लिस्ट स्प्लिट फंक्शन, देन यूज हियर str.split। अब क्या हुआ, ये जो वर्ड्स है वो सभी वर्ड क्या हो गए, आपके लिस्ट के अंदर स्टोर हो गए एक एक एलिमेंट के फॉर्म में। आप चाहें तो इसे प्रिंट भी करा सकते हैं, प्रिंट लिस्ट प्रिंट कराएंगे तो आपको वैल्यू दिखेंगी। चलिए तो एक बार हम प्रिंट करा के दिखते हैं कि लिस्ट दिखती कैसी है। तो यहाँ पर हमने लिखा प्रिंट lst, ठीक है। इसको पहले चेक कर लेते हैं, देख रहे हैं आपको कि ये जो फाइल थी वो हमारी किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, लिस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। अब हमें बहुत आसान हो गया कि अब हमें फाइल को क्या करना है, बाई वर्ड आपको प्रिंट कराना है ना। तो बाई वर्ड आपको प्रिंट कराना है तो कैसे करेंगे, बाई वर्ड को रिवर्स ऑर्डर में। तो अब आप लिस्ट एलिमेंट को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना बहुत आसान है। तो देखिए एक लूप चलाते हैं, फॉर वर्ड, मैं मीनिंगफुल नेम लिख रहा हूँ, आप w ले सकते हैं, आप वर्ड ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं ना, वर्ड इन lst, ठीक है, मतलब फॉर ईच आइटम। वैसे हम इसको आइटम या वर्ड कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखिए वर्ड आ गया, तो वर्ड को रिवर्स ऑर्डर में कैसे प्रिंट कराते हैं हम लिस्ट के वर्ड को, तो प्रिंट हम लिखेंगे वर्ड, देन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर स्ट्रिंग को रिवर्स कैसे करते हैं, कोलन कोलन -1। यदि आपको याद होगा पिछली बार का, तो हमने इसको क्या किया, कोलन कोलन -1 करके कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर आप प्रिंट के साथ एंड इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एंड इक्वल टू स्पेस दे सकते हैं। तो स्पेस कैसे दिया जाता है, सिंगल कोट्स एंड स्पेस, ठीक है। तो अब आपको मैं प्रोग्राम फिर से समझाता हूँ कि देखिए सबसे पहले हमने फाइल को रीड किया, फाइल डॉट रीड के थ्रू वो स्ट्रिंग के अंदर स्टोर हो गया। देन स्ट्रिंग को हमने स्प्लिट कर दिया सेकंड लाइन में, तो क्या हुआ, स्ट्रिंग किस में कन्वर्ट हो गई, लिस्ट में कन्वर्ट हो गई। अब लिस्ट के सभी एलिमेंट को यदि आपको एक एक वर्ड को आपको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराना है तो कैसे करते हैं, वर्ड कोलन कोलन -1, है ना। तो वर्ड कोलन कोलन -1 जैसे ही करेंगे तो ईच वर्ड क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा और प्रिंट भी होता जाएगा। इसको हम रन करके देखते हैं, देखिए केंद्रीय रिवर्स ऑर्डर में हो गया, विद्यालय रिवर्स ऑर्डर में हो गया, नंबर 1 रिवर्स ऑर्डर में हो गया। तो इस टाइप से हमने ये 2 प्रोग्राम बना के देखे हुए हैं, है ना। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये चीज़ समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। अब मैं इससे रिलेटेड बहुत सारे आपको प्रोग्राम दूंगा और आप उन प्रोग्राम को ढंग से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।